Yes, good morning everyone. Good morning. So in this particular session, we will be discussing exemptions under the SEBI CEST regulations 2011. ध्यान देना यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम लोग पढ़ने वाले हैं exemptions अंडर SEBI CEST regulations 2011. अच्छा सर, अब ये जो एग्जम्पशन अपन पढ़ रहे, ठीक है, ये जो एग्जम्पशन अपन पढ़ रहे, ये हम एग्जम्पशन पढ़ रहे फ्रॉम मेकिंग exemption from making an open offer. exemption from making an open offer. तो कहीं ना कहीं ये रेगुलेशंस आपको कनेक्टेड है किसके साथ? रेगुलेशन नंबर 3 के साथ. किसके साथ कनेक्टेड है बच्चों? रेगुलेशन नंबर 3 के साथ. ठीक है, रेगुलेशन नंबर 3. सर रेगुलेशन नंबर 3 पे क्या पढ़ा था अपन ने? दैट इफ एन acquirer either individually or through any PSC intends to acquire 25% or more shares in the target company, 25% or more shares or voting rights in the target company, then before making any such acquisition, a mandatory open offer is required to be given for acquiring additional 26% shares. याद है पिछले सेशंस में हम लोगों ने पढ़ा था. रेगुलेशन नंबर 10 and regulation number 11 deals with the exemptions. Regulation number 10 and regulation number 11 deals with the exemptions from making an open offer. तो सर आप ऐसा बोलना चाहते हो that even though acquirers voting percentage in the target company reaches up to the level of 25% or more, still the acquirer would not be required to make any mandatory open offer. बात समझ में आ रही है क्या? Even though acquirers voting percentage in the target company reaches up to the level of 25% or more, still the acquirer would not be required to make any mandatory open offer as per the requirement of regulation number 3. ठीक है, अब एग्जम्पशन में दो रेगुलेशन डील करते हैं आपको, रेगुलेशन नंबर 10 एंड रेगुलेशन नंबर 11. रेगुलेशन नंबर 10 बात करता है अबाउट जनरल एग्जम्पशन. ठीक है, जनरल एग्जम्पशन, इसको हम लोग ऑटोमेटिक एग्जम्पशन भी बोल सकते हैं. रेगुलेशन नंबर 10 में जो भी केसेस फॉल करेंगे, ध्यान से सुनना, रेगुलेशन नंबर 10 में जो भी केसेस फॉल करेंगे, इन ऑल सच केसेस acquirer is not required to make any mandatory open offer. रेगुलेशन नंबर 10 में जो भी केसेस फॉल करेंगे, इन ऑल सच केसेस acquirer would not be required और acquirer is not required to make any mandatory open offer. ठीक है, एंड रेगुलेशन नंबर 11 में स्पेसिफिक एग्जम्पशन की बात की जा रही है. स्पेसिफिक एग्जम्पशन बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन. specific exemption by making an application to SEBI. तो रेगुलेशन नंबर 10 बात करता है ऑटोमेटिक एग्जम्पशन की या जनरल एग्जम्पशन की. रेगुलेशन नंबर 10 में कुछ केसेस आपको गिवन है, कुछ ट्रांजैक्शंस आपको गिवन है, इन विच
even though acquirers voting percentage in the target company exceeds 25% or more, still the acquirer will be exempted, from making any open offer. ठीक है. रेगुलेशन नंबर 11 बात करता है that acquirer can seek an exemption by making an application to the SEBI. If SEBI grants exemption on an application received from any acquirer or PAC under regulation number 11 on such terms and conditions as the SEBI may deems fit, then in such cases acquirer may be exempted from making any kind of mandatory open offer. ठीक है सर. चलो, तो आप इसको एक बार पहले कॉपी कर लेना. एग्जम्पशन से रिलेटेड हमको दो रेगुलेशंस गिवन है, रेगुलेशन नंबर 10 एंड रेगुलेशन नंबर 11. रेगुलेशन नंबर 10 बात करता है जनरल एग्जम्पशंस की या ऑटोमेटिक एग्जम्पशंस की. तो सर यहाँ पे नो स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड. रेगुलेशन नंबर 11 बात करता है स्पेसिफिक exemptions which an acquirer can avail by making an application to the SEBI, and SEBI may grant exemption on such terms and conditions as the SEBI may deems fit. ठीक है. चलो, तो इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन नंबर 10. देखिए एक सेकेंड. यस, आ जाओगे. ध्यान से सुनना. रेगुलेशन नंबर 10 lays down certain circumstances which exempts an acquirer from making an open offer under regulation number 3 and regulation number 4 of SEBI takeover regulations. As per regulation 10(1)(a), any acquisition made in pursuance to inter se transfer. इंटर से का यहां पे मतलब लिख लो amongst. ठीक है. pursuant to any inter se transfer या in between transfer. In between transfer amongst the qualifying persons are exempted, and the qualifying persons are, पहला है immediate relatives, दूसरा है inter se transfer, in between transfer of shares amongst the named promoters of company, तीसरा है in between transfer amongst holding subsidiary and fellow subsidiary, and next one, inter se transfer to person holding not less than 50% of equity shares of a company, and shareholders of the target company who have been a person acting in concert. ठीक है. तो ये पांच केसेस. चलो एक एक को हम लोग समझते हैं. सबसे पहले आ जाओगे भाई फर्स्ट केस पे, इमीडिएट रिलेटिव. एनी इंटर से ट्रांसफर बिटवीन दी इमीडिएट रिलेटिव. देखो क्या लिखा है, एनी इंटर से ट्रांसफर अमंग्स द पर्संस हु आर इमीडिएट रिलेटिव. मम्मी पप्पा, पप्पा बेटा, पप्पा बेटी, भाई बहन, भाई भाई, immediate relatives would be exempted from the requirement of making an open offer. Hence, with reference to the acquirer, any transfer from his spouse, children, parents, brother, sister, parents of his spouse, and the brother, sister of his spouse is automatically exempted. अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. देखना, यहां पे दो टाइप के केसेस आ सकते हैं. एक कंपनी है ए लिमिटेड. ठीक है. ए लिमिटेड में मिस्टर राम हैज परचेस्ड 10% shares. Mr. Ram has purchased 10% shares. And Mr. Golu has purchased
16% शेयर्स। ठीक है, एंड बोथ मिस्टर राम एंड मिस्टर गोलू आर ब्रदर्स। ठीक है, बोथ मिस्टर राम एंड मिस्टर गोलू आर ब्रदर्स। ठीक है, इन दिस सिचुएशन क्या हो रहा है देखो, दे बोथ आर इमीडिएट रिलेटिव्स। दे बोथ आर इमीडिएट रिलेटिव्स एंड दोनों का शेयर होल्डिंग मिला करके इट इज एक्सीडिंग 25%। दोनों का शेयर होल्डिंग मिला करके इट इज एक्सीडिंग 25%। इन दिस केस दे विल बी डीम्ड एज PAC। यहां पे इन दोनों को मिला करके या इन दोनों को क्या माना जाएगा, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। ठीक है, and in this case takeover code, in this case takeover code is attracted। बात समझ में आ रही है क्या, पढ़ा था हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी। यहां पे टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होता है, दोनों का शेयर होल्डिंग मिला करके 26% हो रहा है, तो यहां पे दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर मैंडेटरी ओपन ऑफर। दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर मैंडेटरी ओपन ऑफर। However, later on, समझना, later on मान लो कि गोलू ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए राम को। However, later on गोलू ने क्या किए, अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए इन फेवर ऑफ मिस्टर राम। तो भाई बताओ मुझे, राम के पास पहले से कितना शेयर होल्डिंग था, 10%। गोलू ने कितने परसेंट शेयर्स ट्रांसफर किए होंगे, 16%। तो राम का भी होल्डिंग कितना हो गया, राम का होल्डिंग कितना हो गया, 26% इन दी ए लिमिटेड। तो ये जो ट्रांसफर है ना, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे क्या, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे क्या, इंटर से ट्रांसफर। इट विल बी कंसिडर्ड एज inter se transfer between the immediate relatives and it will be exempted, it will be exempted from takeover code। I hope ये क्लियर है आपको। इंटर से ट्रांसफर हो रहा है यहां पे बिटवीन द इमीडिएट रिलेटिव्स। यहां पे सर इंटर से ट्रांसफर हो रहा है, इन बिटवीन ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द इमीडिएट रिलेटिव्स and thus it will be exempted। ठीक है, दोनों केस कॉपी कर लेना, एग्जाम में आपको दोनों टाइप के केसेस आ सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, केस 1 एंड केस नंबर 2, प्लीज इसको आप पहले एक बार कॉपी कर लीजिए। कॉपी दिस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है सर, चलो अब आगे आ जाओगे। इसको भी नोट कर लेना बच्चों, केस स्टडी में ये आ सकता है। हाउएवर एन इंटर से ट्रांसफर फ्रॉम अ ग्रैंडफादर टू हिज ग्रैंडसन और फ्रॉम एन अंकल टू हिज नेफ्यू और हिज नीस इज नॉट एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो भाई रेगुलेशन नंबर 10 के हिसाब से इमीडिएट रिलेटिव्स ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने बोला कि इंटर से ट्रांसफर अगर हो रहा है बिटवीन द इमीडिएट रिलेटिव्स, बिटवीन द इमीडिएट रिलेटिव्स, तो वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन इमीडिएट रिलेटिव में कौन कौन नहीं आ रहा है, इमीडिएट रिलेटिव में कौन कौन नहीं आ रहा है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। ठीक है, और अंकल or their nephew and niece, they are not being covered, they are not being covered under the definition of
immediate relative for the purpose of regulation number 10, for the purpose of regulation number 10. ये पॉइंट को स्पेसिफिकली नोट कर लेना, एग्जाम में हो सकता है कि आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, स्पेसिफिकली आप इस पॉइंट को नोट कर लो प्लीज, ठीक है सर। नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर फ्रॉम अ पर्सन टू हिज ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड इज ऑल्सो नॉट एग्जेम्प्टेड। तो एक और चीज अपन कर लेंगे, पर्सन टू ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड, भाई की बीवी एंड बहन का हस्बैंड shall also not be covered under the definition of, shall also not be covered under the definition of immediate relatives for the purpose of regulation number 10, for the purpose of regulation number 10, ठीक है सर। तो ये पॉइंट अपन को क्लियर है। चलो अब आगे जाओगे। नेक्स्ट बोला इंटर से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इन बिटवीन ट्रांसफर हो रहा है शेयर्स का अमंग्स दी नेम्ड प्रमोटर्स। Any inter se transfer of shares amongst the person named as the promoter in the shareholding pattern filed by the target company with the stock exchange in accordance with regulation 31 of SEBI LONDR, or any filing made of the promoter's shareholding under the SEBI takeover regulations, that is regulation number 30 पढ़ा था हम लोगों ने, continued disclosure लास्ट क्लासेस के अंदर, for a period of not less than 3 years prior to the proposed acquisition shall be exempted। देखना, मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, जो यहां पे कौन है बच्चों, टारगेट कंपनी है ना, और हम लोग को मालूम है कि जो इंडियन लिस्टेड कंपनीज होती है उनको अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिस्क्लोजर देना पड़ता है as per the requirement of SEBI LONDR 2015. All the listed Indian entity is required to disclose their shareholding pattern, as per the requirement of regulation 31 of SEBI LONDR 2015. Yes or no? Yes sir. तो बोला टारगेट कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जिन जिन भी लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, जिन जिन भी लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, ध्यान देना, whosoever have been identified as promoter of company, whosoever have been identified as the promoter of company, ठीक है, in last 3 years, whosoever have been identified as the promoters of company as per the shareholding pattern disclosed by the company, disclosed by the target company. एक सेकेंड, in last 3 years, ठीक है, then any transfer in between the promoters, any transfer in between the promoters shall be exempted, any transfer in between the promoters shall be exempted, ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लेना, एनी ट्रांसफर इन बिटवीन दी प्रमोटर्स, प्रमोटर्स यहां पे कौन, हु हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द प्रमोटर इन द प्रीवियस 3 years, in any of the previous 3 years, as per the shareholding pattern disclosed by the company in accordance with the requirements of SEBI LONDR 2015। आ जाओगे आगे, any in between transfer amongst holding subsidiary and fellow subsidiary, any inter se transfer amongst a company and its subsidiary, its holding and its other holding company,
इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो क्या बोला यहां पे, कोई भी अगर ट्रांसफर हो रहा है subsidiary, between holding and subsidiary, fellow subsidiaries, या from subsidiary to holding, from subsidiary to holding। नॉर्मली ये होल्डिंग टू सब्सिडरी फेलो सब्सिडरीज एंड सब्सिडरी होल्डिंग कवर किया गया है। एक एग्जाम्पल तुमको दिया है समझाने के लिए, शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड विच इज हेल्ड बाय बी, शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड विच इज हेल्ड बाय बी। ठीक है सर, बी लिमिटेड है ये, है ना, और बी लिमिटेड के पास किसका शेयर है, ए लिमिटेड का। अब समझना, अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड में जो शेयर्स है बी लिमिटेड के पास, अगर बी लिमिटेड ये शेयर्स ट्रांसफर करे सी को, ठीक है, तो क्या बन रहा है बच्चों, सब्सिडरी टू होल्डिंग। या बी लिमिटेड ये शेयर्स ट्रांसफर या क्यू को, देखना सब्सिडरी टू होल्डिंग, या बी लिमिटेड ये शेयर्स ट्रांसफर करे सब्सिडरीज को, ठीक है, या बी लिमिटेड ये शेयर्स ट्रांसफर करे अपने सब्सिडरीज को, तो इसमें बन गया भाई बी लिमिटेड टू पी लिमिटेड एज वेल एज क्यू लिमिटेड। या बी लिमिटेड अगर ये शेयर्स को ट्रांसफर करे टू इट्स, इसके ये फेलो सब्सिडरीज हैं। इफ बी लिमिटेड ट्रांसफर्स दी शेयर्स हेल्ड इन ए लिमिटेड टू इट्स फेलो सब्सिडरीज, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस फेलो सब्सिडरीज है वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बी लिमिटेड टू वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। बात समझ में आ रहा है क्या? Then any such inter-se transfer is also exempted. Any such inter-se transfer is also exempted. बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार क्या बोला यहां पे, इन बिटवीन ट्रांसफर हो रहा है, बिटवीन होल्डिंग सब्सिडरी, बिटवीन होल्डिंग सब्सिडरी और सब्सिडरी होल्डिंग, फिर से होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी होल्डिंग और इन बिटवीन दी फेलो सब्सिडरीज, और इन बिटवीन दी फेलो सब्सिडरीज, देन ऑल सच इंटर-से ट्रांसफर या इन बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर एग्जेम्प्टेड, आर एग्जेम्प्टेड। ठीक है, एग्जाम्पल तुमको गिवन है, लिखा है यहां पे देखो, एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय बी इन दी टारगेट, बेटा ए, बी लिमिटेड के पास जो शेयर्स है ए लिमिटेड का, अगर बी लिमिटेड वो शेयर्स ट्रांसफर कर देता है सी को, जो उसका होल्डिंग कंपनी है, जो उसका होल्डिंग कंपनी, तो क्या ट्रांसफर हो रहा है बेटा, सब्सिडरी से होल्डिंग, या वो ट्रांसफर कर देता है शेयर्स अपने सब्सिडरी को पी एंड क्यू को, या दूसरे फेलो सब्सिडरीज को, दूसरे फेलो सब्सिडरीज को, ये दोनों फेलो सब्सिडरीज, देन such inter-se transfer is also exempted. Such inter-se transfer is also exempted from the requirement of making mandatory open offer. ठीक है, फिर से एक बार, सब्सिडरी टू होल्डिंग कवर्ड है, होल्डिंग टू सब्सिडरी कवर्ड है, फेलो सब्सिडरी कवर्ड है, फिर से एक बार, होल्डिंग टू सब्सिडरी कवर्ड, सब्सिडरी टू होल्डिंग
covered between fellow subsidiaries. Is it clear? चलो आगे. Next, inter-se transfer to person holding not less than 50% of the equity shares of a company. आ जाओ. नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है यहाँ पे देखो. एनी ट्रांसफर amongst the person, any transfer in between the person who holds not less than 50% of the company. फिर से एक बार, एनी ट्रांसफर, कोई भी ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द पर्सन जो होल्ड कर रहा है क्या, नॉट मोर देन 50% ऑफ द कंपनी विच होल्ड शेयर्स इन द टारगेट कंपनी. 50% ऑफ द कंपनी विच होल्ड शेयर्स इन द टारगेट कंपनी. सर क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा इसका, क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा इसका? फिर से एक बार, एनी ट्रांसफर अमंग्स पर्सन हु होल्ड्स नॉट लेस देन 50% ऑफ द, नॉट लेस देन 50% ऑफ द कंपनी विच होल्ड शेयर्स. मतलब जो कंपनी शेयर्स होल्ड कर रहा है उसका 50% शेयर्स अगर किसी और के पास है, सुनना ध्यान से, जो कंपनी शेयर होल्ड कर रहा है टारगेट कंपनी का, जो कंपनी शेयर्स होल्ड कर रहा है टारगेट कंपनी का, अगर उस कंपनी का 50% शेयर्स, 50% या उससे ज्यादा शेयर्स किसी और कंपनी के पास है. फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, मान लो कि ए लिमिटेड यहां पे है टारगेट कंपनी, ठीक है, ए लिमिटेड है टारगेट कंपनी. अब टारगेट XYZ लिमिटेड, ठीक है, कितना, ठीक है सर. अब XYZ मान लो इज होल्डिंग मोर देन 25% शेयर्स, इज होल्डिंग मोर देन 25% शेयर्स. इन ए लिमिटेड, ठीक है, लेकिन XYZ लिमिटेड का 80% शेयर होल्डिंग है ABC लिमिटेड के पास. XYZ लिमिटेड का 80% शेयर होल्डिंग है किसके पास, ABC लिमिटेड के पास. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो XYZ लिमिटेड का ये जो शेयर होल्डिंग है ए लिमिटेड में, इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू ABC लिमिटेड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू ABC लिमिटेड एंड टेक ओवर कोड विल नॉट बी अट्रैक्टेड हेयर. टेक ओवर कोड विल नॉट बी अट्रैक्टेड हेयर. जब XYZ 25% पे आया होगा, समझना, जब XYZ 25% पे आया होगा तो ऑलरेडी एन ओपन ऑफर दिया होगा उसने. अब अगर ये XYZ किसी ऐसे कंपनी को शेयर ट्रांसफर कर रहा है जो कंपनी XYZ में 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रही है, जो कंपनी XYZ लिमिटेड में 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रही है, देन इन सच केसेस रेगुलेशन नंबर 10 विल बी एप्लीकेबल. एनी ट्रांसफर अमंग द पर्सन हु होल्ड्स नॉट लेस देन 50%, 50% किसका होल्ड कर रहे हैं, उस कंपनी का. 50% से ज्यादा किसमें होल्ड कर रहे हैं, उस कंपनी में विच होल्ड शेयर्स इन द टारगेट कंपनी. तो यहां पे ABC लिमिटेड 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा है किसमें, XYZ लिमिटेड में. और XYZ लिमिटेड क्या कर रहा है भाई, शेयर्स होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है इन ए लिमिटेड में. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है. एनी ट्रांसफर अमंग द पर्सन हु होल्ड्स नॉट लेस देन 50% ऑफ द company which holds shares, not less than 50% of the company XYZ Limited is the company which is holding shares in the target company, I hope it is clear, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा. Next, inter-se transfer to other companies in which such person hold not less than 50% of the equity shares, 50% of the equity shares and their subsidiaries. Such inter-se transfer are exempt subject to the condition that control over such qualifying person being exclusively held by the same person. Any inter-se transfer of shares to a company in which the same set of person holds not less than 50% of the equity shares would be exempted dash. देखो, ये बेसिकली ग्रुप कंपनीज की बात की जा रही है. मान लो कि ये मैनेजमेंट है,
एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ए लिमिटेड में इनका है 55% स्टेक, ए लिमिटेड में इनका है 55% स्टेक, एंड बी लिमिटेड में है, तो बोथ द कंपनी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेम ग्रुप ऑफ पर्सन्स, both the company is being controlled by same group of person. ठीक है, सेम ग्रुप ऑफ पर्सन। यहां बोला गया कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में कोई भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ एनी टारगेट कंपनी, तो दैट वुड बी एग्जेम्प्टेड, दैट वुड बी एग्जेम्प्टेड। प्लीज कॉपी कर लेना, ये सारे एग्जाम्पल्स थोड़े से टेक्निकल रहेंगे, इसलिए आप सारे एग्जाम्पल्स को प्लीज 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 कॉपी करते रहना, ठीक है। एग्जाम में जब यही केसेस आते हैं, वेरी ऑफन इट्स बीन सीन दैट स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, आ जाओगे नेक्स्ट। ये पढ़ लेना। देन person acting in concert for not less than 3 years prior to the proposed acquisition and disclosed as such pursuant to the filing of listing agreement. Any transfer of shares not less than 3 years same has been disclosed in the shareholding pattern. जैसे अपन ने ना promoters के लिए interstate transfer between the promoters who have been identified as the promoters in the shareholding pattern as disclosed by the company in accordance with the requirement of SEBI LO India 2015. In the similar manner, all such person who have been identified as PAC in the shareholding pattern, ठीक है, ठीक है, इन द लास्ट 3 years दे शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड। अगर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन PAC हु हैव बीन आइडेंटिफाइड एज PAC एज पर द शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज बाय द कंपनी, ठीक है, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज PAC द प्रीवियस 3 years, in the previous 3 years, so any transfer between them shall also be exempted. Next, shareholders of the target company who have been acting as a PAC, सिंपल है, सेम चीज बोल रहे हैं, PAC के बीच में ट्रांसफर, ठीक है, PAC के बीच में ट्रांसफर who have been identified as PAC in the previous 3 years, ठीक है। अभी जो 3 साल मैं बार बार बोल रहा हूं ना, 3 साल कहां से तुम जोड़ोगे, 3 साल जोड़ोगे फ्रॉम द डेट ऑफ प्रपोज्ड एक्विजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रपोज्ड एक्विजिशन, ठीक है सर। 3 years कहां चलोगे, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रपोज्ड एक्विजिशन। टारगेट कंपनी के वो सभी शेयर होल्डर्स जिनको एज अ PAC आइडेंटिफाई किया गया है इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है, इन द प्रीवियस फॉर द लास्ट प्रीवियस 3 years, ठीक है। 3 years कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रपोज्ड एक्विजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रपोज्ड एक्विजिशन, ठीक है, इसको इतना ही पढ़ना। तो ये हो गए आपके केसेस रिलेटिंग टू इंटर से ट्रांसफर। अब आ जाओगे नेक्स्ट पार्ट पे, इन सबको कट कर देना, ठीक है, इसको भी कट कर देना। चलो आगे आ जाओगे। नेक्स्ट है रेगुलेशन 10(1)(b), रेगुलेशन नंबर 10(1)(b। अब 10(1)(b) में वो सारे केसेस होंगे जहां पे देयर इज नो इंटेंशन टू अक्वायर कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ टारगेट कंपनी।
ओवर द मैनेजमेंट ऑफ टारगेट कंपनी, इंटेंशन नहीं है। एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ देयर बिजनेस, and in the ordinary course of their business, it is very much possible that the shareholding may exceed 25% or more, that the shareholding may exceed 25% or more. ऐसे केसेस जहां पे बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे केसेस जहां पे बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है फॉर एनी पर्सन टू अक्वायर शेयर्स इन एनी कंपनी more than the threshold limit, more than the threshold limit as specified under regulation number 3, as specified under regulation number 3. ठीक है, देखो लिखा ना, any acquisition in the ordinary course of business by an underwriter. मान लो कि any underwriter under an underwriting agreement is bound to subscribe more than 25% shares of any target company. तो क्या उस अंडरराइटर के ऊपर भी तुम मैंडेटरी ओपन ऑफर का रिक्वायरमेंट डाल दोगे? और अगर तुम अंडरराइटर के ऊपर भी मैंडेटरी ओपन ऑफर का रिक्वायरमेंट डाल दोगे तो मुझे एक बात बताओ, वो मैंडेटरी ओपन ऑफर दे, मैंडेटरी ओपन ऑफर से रिलेटेड सारे कंप्लायंसेस को मीट करे और अपना काम करे? अगर तुम अंडरराइटर जैसे लोगों पे मैंडेटरी ओपन ऑफर देने का रिक्वायरमेंट डाल देते हो तो इट विल क्रिएट अननेसेसरी ऑब्लिगेशन, अननेसेसरी प्रेशर ऑन द अंडरराइटर. हो सकता है कि अंडरराइटर इवन मे नॉट एग्री टू अंडरराइट द शेयर्स. बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो अंडरराइटर्स एग्जेम्प्टेड है. दूसरा है स्टॉक ब्रोकर. मान लो कि किसी स्टॉक ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के कहने पे एक्स कंपनी के शेयर्स परचेज किए. ठीक है, क्लाइंट कहता गया, वो शेयर्स परचेज करता गया, क्लाइंट कहता गया, वो शेयर्स परचेज करता गया. एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आ गया जहां पे उसका शेयर होल्डिंग इन एनी कंपनी हैज रीच्ड अप टू द लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट. या ऐसा भी हो सकता है कि उसने शेयर्स परचेज किया ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट एंड क्लाइंट हैज फेल्ड टू मेक द पेमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच that broker has to exercise lien on the shares. That broker has to exercise lien on the shares. And due to which his shareholding limit has reached up to the level of threshold limit under regulation number 3. ठीक है, तो क्या ब्रोकर के ऊपर भी मैंडेटरी ओपन ऑफर देने का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगा? आंसर विल बी नो. ठीक है सर, इज इट क्लियर? तो सर पहले केस में अपन ने किसको एग्जाम्प्ट किया? अंडरराइटर को एग्जाम्प्ट किया, जहां पे अंडरराइटर शेयर्स अंडरराइट कर रहा है अंडर एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट. दूसरा अपन ने किया किसको? स्टॉक ब्रोकर. दूसरा अपन ने किया थ्रू दी स्टॉक ब्रोकर. थर्ड वन इज मर्चेंट बैंकर. पढ़ा था CBICDR में. मर्चेंट बैंकर के ऊपर भी कुछ अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस डाला गया है. ठीक है, तो अगर मर्चेंट बैंकर शेयर्स परचेज कर रहा है, ठीक है, अगर मर्चेंट बैंकर शेयर्स परचेज कर रहा है in order to discharge his obligation, at the time of issue of securities, then in such cases, if his shareholding reaches up to a level of threshold limit, still he won't be required to make any mandatory open offer. ठीक है, then any person acquiring shares pursuant to the scheme of safety net arrangement in accordance with the regulation number 44 of the SEBI issue of capital and disclosure requirement regulations 2009 नहीं है रे. ठीक है, any person acquiring these shares in accordance with the scheme of safety net arrangement. आई होप कि आपको ये सेफ्टी नेट अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है. नेक्स्ट,
Yes. Any merchant banker registered with board acting as a stabilizing agent at the time of exercisement of green shoe option. याद है ना, ग्रीन शू ऑप्शन में स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करता था, एग्जिस्टिंग मेंबर एंड प्रमोटर से शेयर्स बोरो करता था और वो शेयर्स अलॉट कर देता था फॉर द टाइम बिंग टू द एप्लीकेंट्स, फिर लेटर ऑन मार्केट में जाकर के वो शेयर्स परचेज करता था एंड शेयर्स परचेज करके वापस उन शेयर्स का रीपेमेंट करता था, उन शेयर्स को रीपे करता था उन सभी लोगों को जिनसे उसने बोरो किया था. तो एज अ पार्ट ऑफ कैरिंग आउट द स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म, स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म अंडर ग्रीन शू ऑप्शन, under green shoe option, if the merchant banker acquires 25% or more shares, ठीक है, या acquires such number of shares which touches the threshold limit or even exceeds the threshold limit, then in such cases those merchant bankers would not be required to make any kind of open offer. ठीक है. नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय अ रजिस्टर्ड मार्केट मेकर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स फॉर विच ही इज द मार्केट मेकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मार्केट मेकिंग. शेयर्स का एक्विजिशन किया है किसने, मार्केट मेकर ने, एज अ पार्ट ऑफ कैरिंग आउट द मार्केट मेकिंग स्कीम, एज अ पार्ट ऑफ कैरिंग आउट द मार्केट मेकिंग स्कीम. Then acquisition of shares by a scheduled commercial bank who is acting as an escrow agent. आप लोगों ने पढ़ा था रेगुलेशन नंबर 17 में, एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है एंड कंसीडरेशन डिपॉजिट करना है. वो कंसीडरेशन शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता था, वो कंसीडरेशन शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता था. तो during that process any scheduled commercial bank acquires the shares which touches the threshold limit or exceeding or even exceeding the threshold limit, then in such cases also they are not required to make any mandatory open offer. एक चीज ध्यान रखना, यहां पे तुमने जितने भी केसेस पढ़े ना, इन सभी केसेस में the person having shares beyond the threshold limit does not have any intention to acquire share, to acquire control over the management of any target company. और उनके पास शेयर्स कलेक्ट हो रहा है या शेयर्स आ रहा है एज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटीज, एज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटीज, एंड दैट इज वाई दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड. ठीक है. नेक्स्ट, एनी इन्वोकेशन ऑफ प्लेज बाय अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ प्लेज. मान लो कि किसी कंपनी ने लोन लिया है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पीएफआई से, एंड कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट in the repayment of loan and that loan has been taken against the creation of pledge on the shares of company. लोन के बदले कंपनी ने अपने सिक्योरिटीज पे, अपने शेयर्स पे प्लेज क्रिएट किया था. ठीक है. कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो व्हाट सच बैंक वुड डू, दे विल एनफोर्स देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड बाय वे ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट दे विल acquire the shares which has been kept for the purpose of pledge, and due to this shareholding of such banks or PFI may reaches up to the level of threshold limit or even exceed the threshold limit. तो क्या वहां पे मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा? आंसर इज नो.
क्या वहां पे मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा? तो आंसर विल बी नो. इज इट क्लियर? बोलिए, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, कमिंग आउट टू द नेक्स्ट पार्ट, ध्यान देना यहां पे. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओगे, इसको यहां से पढ़ो. बोला इफ देर इज अ शेयर परचेज एग्रीमेंट to acquire shares and pursuant to the same, the acquirer has made public announcement. Any acquisition subsequently between the same seller and the acquirer would also be exempted from the requirement of making a public announcement if such an intention and full disclosure of the same has been made in the public announcement and in the letter of offer. मैंने आपको जब सेबी सेस्ट रेगुलेशन 2011 पढ़ाना स्टार्ट किया था तो इन दी वेरी फर्स्ट क्लास मैंने आपको कहा था जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन रेगुलेशंस को लाने का, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेकओवर, है ना, इज टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेकओवर एज वेल एज टू प्रोवाइड एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी. याद है ना? अब यहां पे समझना, शेयर्स का एक्विजिशन हो रहा है बाय वे ऑफ अ शेयर परचेज एग्रीमेंट. इसका मतलब कि टारगेट कंपनी, ठीक है, टारगेट कंपनी इज विलिंगली एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन विद द एक्वायरर. ठीक है, अब ये हो सकता है एज अ पार्ट ऑफ डाइवेस्टमेंट स्कीम, अपना शेयर होल्डिंग वो डाइल्यूट करना चाहते हैं. टारगेट कंपनी अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करना चाह रही है, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे हैव एग्रीड विद द एक्वायरर as well as they have entered into an agreement with the acquirer and with the mutual consent of both by way of mutual negotiation such acquisition of shares such acquisition of shares are taking place. बात समझ में आ रहा है क्या? सामने वाले की मर्जी से तुम उसके शेयर्स खरीद रहे हो, तुम उसके बिजनेस खरीद रहे हो, ठीक है, तो मैंडेटरी ओपन ऑफर देने का रिक्वायरमेंट अराइज नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे जितने भी केसेस है ना 10(1)(d) में, मैं एक लाइन में लिख देता हूं, एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, any acquisition of shares in pursuant to any scheme of rehabilitation of any financially troubled company shall be exempted. समझ रहे हो? फाइनेंशियली ट्रबल्ड कंपनी है, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियली ट्रबल्ड कंपनी है और उस कंपनी को वाइंडिंग अप से बचाने के लिए, मान लो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया, कि 3 फाइनेंशियली साउंड कंपनी मिलकर के एक फाइनेंशियली वीक कंपनी को या फाइनेंशियली ट्रबल्ड कंपनी को टेक ओवर करेगी. तो यहां पे जो एक्वायरर है खुद से तो नहीं करना चाहता, दे आर डूइंग सो कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस, खुद से तो नहीं करना चाहते. thus such acquisition of shares are exempted from the requirement of making mandatory open offer. एक लाइन में लिख लेना इसको, any acquisition of shares in pursuant to any scheme of rehabilitation, किसका? of any financially troubled company. तुम लोगों को अगर याद हो सेक्शन नंबर 237 याद है? 237 में तुम लोगों ने पढ़ा था अमलगमेशन ऑफ 2 or more companies by the order of central government in the public interest.
है ना। और वहां पे तुम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पास अ ड्राफ्ट ऑर्डर आस्किंग अ फाइनेंशियली साउंड कंपनी टू अक्वायर द बिजनेस ऑफ एनी फाइनेंशियली वीक कंपनी या फाइनेंशियली ट्रबल्ड कंपनी। मान लो इन परसुएंस टू सच ऑर्डर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को अक्वायर कर रही है, तो क्या यहां पे रेगुलेशन नंबर 3 एप्लीकेबल होना चाहिए? आंसर इज नो, आंसर इज नो। ठीक है, फिर वही बोला आपको, यहां पे भी सेम चीज कंटिन्यू किया, एज अ पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान, एज अ पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान। अगर एक कंपनी के शेयर्स को अक्वायर किया जा रहा है बाय दी अनदर कंपनी और बाय एनी अदर पर्सन, then in such cases also रेगुलेशन नंबर 3 का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, then in such cases also रेगुलेशन नंबर 3 का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा। Is it clear? If the shares of any company is being acquired in pursuant to the resolution plan approved by the committee of creditors, and the adjudicating authority, जो कौन रहने वाला है यहाँ पे? NCLT। देन ये भी सेम मिलता जुलता पॉइंट है, एज अ पार्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बैंक ने लोन दिया था कंपनी को, कंपनी ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया। लोन एग्रीमेंट में साफ मेंशन था कि अगर कंपनी लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए then bank is going to take over the control over the management of target company। या मान लो कि बैंक के लोन के अगेंस्ट कंपनी ने सिक्योरिटी क्रिएट किया था ऑन इट्स शेयर्स, एंड एज अ पार्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बैंक इज acquiring shares। As a part of enforcement of security interest, bank is acquiring these shares। Bank is acquiring the shares of target company। तो उन केसेस में भी क्या नहीं होगा बच्चों? रेगुलेशन नंबर 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन परसुएंट टू दी स्कीम ऑफ डीलिस्टिंग। मैं यहां पर लिख देता हूं एक लाइन में, एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन परसुएंट टू एनी scheme of delisting offer, in pursuant to any scheme of delisting offer, in such cases also regulation number 3 will not be applicable। ठीक है, नेक्स्ट, एक्विजिशन बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन, सक्सेशन और इनहेरिटेंस वुड ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड। मान लो, देखना यहां पे एक कंपनी है ए लिमिटेड में मिस्टर पप्पू इज होल्डिंग 16% शेयर्स। ठीक है, एंड हिज सन इज होल्डिंग 12% शेयर्स। His son is holding 12% shares। तो डीम्ड पीएससी है, उन्होंने मैंडेटरी ओपन ऑफर दिया रहेगा। कल को मिस्टर पप्पू का डेथ हो जाता है तो ये शेयर ट्रांसमिट हो जाएगा इन फेवर ऑफ हिज सन। तभी 12 + 16 कितना हो रहा है? 28। तो सवाल उठता है, क्या यहां पे मिस्टर पप्पू के सन को मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा?
क्या मिस्टर पप्पू के सन को मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा? आंसर इज नो। कॉपी कर लेना ही। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? एनी एक्विजिशन ऑफ वोटिंग राइट्स बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स कब मिलता है? व्हेन देयर प्रेफरेंस डिविडेंड रिमेन्स आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, then from the 3rd year onward they can get the voting rights, they can get the voting rights। अब मान लो कि as a part of failure on behalf of company या failure on the part of company, on the part of company, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिल गया भाई? वोटिंग राइट्स मिल गया। ठीक है। और अगर वो वोटिंग राइट्स थ्रेशोल्ड लिमिट को टच करता है, कितना है? 25% और मोर। रेगुलेशन में 3 में बोला ना कि 25% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स अगर आप अक्वायर करना चाहते हो किसी भी टारगेट कंपनी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। यहां पे कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे किया लगातार 2 सालों तक, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल गया क्या? वोटिंग राइट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिल गया? वोटिंग राइट्स। एंड मान लो कि वोटिंग राइट्स कितना है? 25% और मोर। Then in such cases, whether such preference shareholders are required to make mandatory open offer, then in such cases, whether such preference shareholders are required to make mandatory open offer, तो answer will be no. Answer will be no. मैंने जो एक्सप्लेन किया प्लीज उसको आप लिख लेना। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी फ्रॉम मेकिंग the payment of preference dividend, then in such cases those preference shareholders are exempted from making any kind of mandatory open offer even though their voting percentage in the target company reaches up to the level of 25% or more। ठीक है सर। नेक्स्ट, अगर शेयर होल्डिंग किसी का बढ़ता है एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेप्ट इनटू इक्विटी, है ना, कंपनी डेप्ट्स का पेमेंट नहीं कर पाई या कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया, वो यहां पे कवर नहीं है, लिखा है देखो, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय द लेंडर्स परसुएंट टू कन्वर्जन ऑफ देयर डेप्ट, परसुएंट टू कन्वर्जन ऑफ देयर डेप्ट, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कवर होगा क्या? रुको अभी। एज अ पार्ट ऑफ डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग, एज अ पार्ट ऑफ डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब डेप्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहे तो डेप्ट के बदले शेयर इशू कर रहे हैं, यहां पे कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला केस नहीं आएगा। ठीक है, डेप्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डेप्ट के बदले शेयर इशू कर रहे, और वो शेयर इशू करने की वजह से अगर किसी पर्सन का शेयर होल्डिंग टारगेट कंपनी में थ्रेशोल्ड लिमिट को टच करता है या थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाता है, then in such cases they are not required to make mandatory open offer, then in such cases they are not required to make mandatory open offer। is it clear बच्चों? is it clear? सर अभी तक अपन ने जितने भी केसेस पढ़े ना, उन सभी केसेस में हम एक कंक्लूजन तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। क्या कंक्लूजन?
कि उन सभी केसेस में अक्वायरर वाज नॉट इंटेंडिंग या अक्वायरर इज नॉट इंटेंडिंग टू अक्वायर कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ टारगेट कंपनी. नेक्स्ट, increase in voting rights arising out of operation of subsection 1 of section 106 of the Companies Act 2013 or pursuant to a forfeiture of shares by the target company. कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स को फोरफिट किए, कुछ शेयर्स का फोरफीचर किया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली शेयर होल्डिंग बढ़ गया. कैसे, नहीं समझ में आ रहा है सर. देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड एंड कंपनी ने इशू कर रखा है 1 लाख शेयर्स. ठीक है. एंड मिस्टर एक्स के पास आउट ऑफ दिस 1 लाख शेयर मिस्टर एक्स के पास है 20,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड. मिस्टर एक्स इज होल्डिंग 20,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड. तो मुझे बताओ अभी मिस्टर ए के पास कितना वोटिंग कितना शेयर परसेंटेज है? 20%. और मान लो कि सारे शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, तो 20% वोटिंग राइट्स भी है. कह सकते हैं ऐसा. कल को कॉल्स का पेमेंट ना होने की वजह से कंपनी ने 20,000 शेयर्स को फोरफिट कर लिए. 20,000 शेयर्स फोरफिटेड. ठीक है. फोरफीचर के बाद अब कितना शेयर्स बच गया? 80,000. मिस्टर एक्स के पास कितना था? 20,000. तो ऑटोमेटिकली इसका जो शेयर होल्डिंग है, ऑटोमेटिकली इसका जो शेयर होल्डिंग है वो 20 से बढ़कर के कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इसका जो शेयर होल्डिंग है वो 20 से बढ़कर के कितना हो जाएगा? 25%. Whether Mr. X is required to make any mandatory open offer? Answer is no. क्यों? क्यों सर? भाई exempted है under regulation 10. कॉपी कर लेना इसको. ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट, एनी इंक्रीज इन दी वोटिंग राइट्स ऑफ एनी शेयर होल्डर बियॉन्ड दी थ्रेशोल्ड लिमिट. वोटिंग राइट्स बढ़ गया शेयर होल्डर का बियॉन्ड दी थ्रेशोल्ड लिमिट. थ्रेशोल्ड लिमिट कितना? 25%. इन दी सब रेगुलेशन 1 and 2 of 3 without acquisition of control pursuant to any conversion of equity shares with superior voting rights into ordinary equity shares shall be exempted. Yes. voting percentage बढ़ गया due to conversion of equity shares with superior voting rights into ordinary equity shares. Then in such cases also it shall be exempted. In such cases also it shall be exempted. Next है, अगर आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया ड्यू टू बायबैक. अगर आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया ड्यू टू दी बायबैक मेड बाय द कंपनी, देन इन सच केसेस ऑल्सो आपको मैंडेटरी ओपन ऑफर देने से एग्जम्पशन मिलेगा. बहुत सिंपल है, देखना. फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, वही एग्जांपल ले लेता हूं जो भी दिया मैंने तुमको. अभी हमने फोरफीट किया था शेयर, अब हम लोग शेयर्स को बायबैक कर लेते हैं यहीं पे. ये एग्जांपल ले लो, समझना. बोला कि बायबैक की वजह से अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया या शेयर होल्डिंग बढ़ गया तो उन केसेस में भी दे आर मेकिंग दी मैंडेटरी ओपन ऑफर. समझना. पार्टिसिपेट करना जरूरी है? आंसर इज नो. शेयर होल्डर मे और मे नॉट पार्टिसिपेट. और हम लोग बायबैक करने के बाद करना पड़ता है. जिसका बायबैक को कैंसिल करना पड़ता है. जिन शेयर्स का बायबैक किया गया है उन शेयर्स को कैंसिल करना पड़ता है. ठीक है. तो मान लो कि आफ्टर बायबैक पहले 20% शेयर्स था, आफ्टर बायबैक कितने शेयर्स बचे? 80,000 शेयर्स बचे.
अभी भी इसके पास 20,000 शेयर्स है, लेकिन पहले वोटिंग परसेंटेज था 20, अब वोटिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा 25। समझ रहे हो? बायबैक की वजह से अगर किसी पर्सन का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, देन इन सच केसेस ऑल्सो दैट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी मैंडेटरी ओपन ऑफर। लेकिन यहां पे एक और कंडीशन है, अगर तुम्हारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा बायबैक की वजह से तो तुम्हें एग्जम्पशन दिया गया है रेगुलेशन नंबर 10 में। लेकिन तुमसे यह भी एक्सपेक्ट किया जाता है दैट विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज तुम अपने शेयर होल्डिंग को या अपने वोटिंग राइट्स को कम कर लो, 25 से कम कर लो। तो जिस दिन ये बायबैक कंप्लीट हुआ ना, वहां से तुम्हें 90 दिन दिया जाएगा कि यार अगर तुम्हारा वोटिंग परसेंटेज थ्रेशोल्ड लिमिट को टच कर गया है, अगर तुम्हारा वोटिंग परसेंटेज थ्रेशोल्ड लिमिट को टच कर गया है तो अपने वोटिंग राइट्स को कम कर लो, कुछ शेयर्स को बेच लो। कितने दिनों में? 90 डेज में। नहीं किया तो फिर मैंडेटरी ओपन ऑफर का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट वाला, इंक्रीज इन वोटिंग परसेंटेज बिकॉज ऑफ राइट इशू। मैं यहां पे लिख देता हूं, आप पढ़ लेना। इंक्रीज इन वोटिंग परसेंटेज बिकॉज ऑफ राइट इशू। राइट इशू लाने की वजह से किसी पर्सन का अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, किसी पर्सन का अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है एंड इट रीचेज अप टू दी थ्रेशोल्ड लिमिट, then in such cases also they are not required to make any mandatory open offer। तो यहां पे दो चीजें, ये कंपनी राइट इशू लेकर के आई एंड कंपनी ने राइट ऑफ रिनंसिएशन दिया था। आई होप कि सबको क्लियर है राइट ऑफ रिनंसिएशन। राइट शेयर्स के केस में शेयर होल्डर के पास राइट होता है दैट आइदर दे कैन सब्सक्राइब द शेयर्स और दे कैन रिनाउंस द सेम इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन। तो कंपनी राइट शेयर्स लेकर के आई एंड द पर्सन हैज नॉट रिनाउंस्ड देयर राइट्स, इसका मतलब दे आर गोइंग टू एक्वायर शेयर्स। अब ये राइट शेयर्स स्कीम के अंदर शेयर्स एक्वायर करने की वजह से, राइट शेयर स्कीम के अंदर अगर शेयर्स एक्वायर करने की वजह से वोटिंग परसेंटेज थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच जाता है या थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर जाता है, देन इन सच केसेस आल्सो no mandatory open offer is required to be given। ठीक है सर, बोलो। इसको यहां तक एक बार बस पढ़ लोगे, यहां तक। ये राइट शेयर्स का प्राइसिंग और ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपको रेगुलेशन नंबर 10। हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज वो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। बेसिकली उसमें भी स्पेसिफिकली अगर वो इंटर से ट्रांसफर पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज वो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना बिफोर आंसरिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 11, बात करता है स्पेसिफिक एग्जामिशन की। मैंने बताया था रेगुलेशन नंबर 11 में क्या होगा, एन एक्वायरर कैन मेक एन एप्लीकेशन to the SEBI for seeking exemption from making mandatory open offer under regulation number 3 or 4। देखो, if the proposed transaction is not automatically exempted under various categories as mentioned in regulation number 10 discussed in the preceding paragraph above, and the acquirers are of the opinion that the transaction that they propose to enter requires an exemption, तो acquirer क्या कर सकता है उन केसेस में, can make an application to SEBI for seeking exemption। It must however be noted that application shall be made before the transaction or acquisition is initiated। SEBI को application लगाना पड़ेगा before the transaction has been undertaken or before the transaction has been initiated। एक बार ट्रांजेक्शन कर लिया, तुम्हारा थ्रेशोल्ड, तुम्हारा वोटिंग लिमिट
या शेयर होल्डिंग लिमिट वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गया, कोई ऑप्शन नहीं है। 25% को टच कर लिया, 11 में एग्जम्पशन के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही है क्या? तो ट्रांजैक्शन में एंटर करने से पहले आप एप्लीकेशन लगा पाओगे फॉर सीकिंग एग्जम्पशन फॉर मेकिंग मैंडेटरी ओपन ऑफर। और जब आप वो एप्लीकेशन लगाते हो, एप्लीकेशन के साथ आप फी डिपॉजिट करते हो, नॉन रिफंडेबल फीस होता है 5 लाख रुपीज का, एंड सबमिटेड अलॉन्ग विद नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ रुपीज 5 लाख, पेबल by way of direct online credit in the bank account or by way of demand draft payable at Mumbai in the favor of drawn in favor of SEBI। एप्लीकेशन किसको लगा? SEBI को लगा। Is it clear? Is it clear? एंड आगे लिख लोगे, देखो इसमें क्या करना, ये पैराग्राफ पढ़ना, आगे लिख लेना, एंड SEBI में in the interest of market or shareholders grant exemptions on such terms as SEBI may deems fit। खत्म। ठीक है। फिर सर एक क्वेश्चन दिमाग में रह गया, क्या कोई भी पर्सन किसी भी सिचुएशन में रेगुलेशन नंबर 11 के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर सीकिंग एग्जम्पशन? अगर आप रेगुलेशन नंबर 11 में ऑप्शन दे रहे हो एक्वायरर को फ्रॉम सीकिंग फॉर सीकिंग एग्जम्पशन फ्रॉम मेकिंग मैंडेटरी ओपन ऑफर, तो सर ऐसे तो कोई भी एक्वायरर किसी भी केस में एप्लीकेशन लगा सकता है सभी को। तो सुनना, रेगुलेशन नंबर 11 में एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एग्जम्पशन कैन बी मेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टारगेट कंपनी, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टारगेट कंपनी हुज मैनेजमेंट has been taken over, whose management has been taken over by the central government or state government or any authority, only in respect of such target company whose management has been taken over by the central government, state government or authority or any statutory authority, and after taking over the management of such target company, central government, state government या statutory authority ने क्या किया, they have appointed new panel of directors। तो सिर्फ ऐसे कंपनीज के रिस्पेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपनीज के रिस्पेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपनीज के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन लगाया जा सकता है अंडर रेगुलेशन नंबर 11। आई होप ये क्लियर है आपको। रेगुलेशन नंबर 11 में एप्लीकेशन लगाने के लिए टारगेट कंपनी कौन सा होना चाहिए, कौन से टारगेट कंपनी के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं? ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टारगेट कंपनी हुज मैनेजमेंट हैज बीन टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। And after acquiring the management, after acquiring the control over management, a new panel of directors has been appointed। इसका मतलब जो existing director था उस target company का, that has already been replaced। I hope ये clear है। सेक्शन 11 में जितना मैंने आपको पढ़ाया, नोट डाउन कराया, आप उतना पढ़ोगे और नोट डाउन करोगे। Is it clear? चलिए, तो इसी के साथ एग्जम्पशन से रिलेटेड जो रेगुलेशन था आपको, रेगुलेशन नंबर 10 and 11,
जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया, जितना पढ़ाया, जैसे पढ़ाया, उतना और वैसे आप लोग पढ़ के जाओगे फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन, एंड यू विल बी इन अ सिचुएशन, यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व एनी केसेस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रेगुलेशन नंबर 10 एंड 11. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.